السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو اکیڈمی پر۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا جو سیریز چل رہا ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے، وہ ہے 10ویں جماعت کی درسی کتاب درخشاں کو لے کر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے 30 سبق کو پڑھ لیا ہے۔ آج ہمارا 31واں سبق ہوگا اور ہمارے اس سلسلے کا آخری سبق ہوگا۔ اس کے بعد ہم لوگ ایک دوسری کتاب جس کا نام روشنی ہوگا، اس کتاب کو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، جو 10ویں جماعت میں اردو کی دوسری کتاب ہے۔ ہم لوگ اس کتاب کو بھی پڑھیں گے، اس کے بعد اس سلسلے کو شروع کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آج ہمارے کتاب کی جو آخری سبق ہے، جو آخری درس ہے، چیپٹر ہے، اس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو ایک جو چیپٹر ہے، جو سبق ہے، یہ بھی ایک نئی صنف ہے۔ اس صنف کو ہم لوگ گیت کا نام دیں گے اور اس صنف کا نام گیت ہے۔ تو آئیے ہم لوگ اس صنف گیت کو ہم لوگ جانتے ہیں کس کو گیت کہتے ہیں۔ تو جس طرح ہم لوگ جانتے ہیں کہ اردو جو ہے، اردو غزل شاعری کی بہت ہی اہم مقبول صنف ہے۔ جیسے غزل ہے، اردو شاعری کی بہت ہی اہم مقبول صنف ہے، اسی طرح ہندی کی شعری اصناف میں، یعنی ہندی کی اصناف میں، صنفوں میں گیت بھی ایک مقبول صنف ہے، اور یہ صنف بہت قدیم زمانے سے مقبول ہے۔ اردو زبان نے جہاں فارسی اور انگریزی کے اثرات کو قبول کرتے ہوئے فارسی، انگریزی اور دوسرے غیر ملکی زبانوں کی صنفوں کو اردو زبان میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، اس طرح شروع ہی سے یہ ہندی کا اثرات قبول کرتی رہی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اردو میں گیت نگاری کی روایت نہ صرف قائم ہو چکی ہے بلکہ یہ ارتقا پذیر ہے۔ گیت ہندی شاعری کی بہت ہی قدیم اور محبوب صنف ہے۔ جیسے اردو محبوب صنف ہے اور قدیم صنف ہے، اسی طرح ہندی شاعری کی ہی بہت قدیم اور محبوب صنف گیت ہے، اور اردو میں ہندی مزاج کی نمائندگی کرنے والے یہ صنف بہت پہلے سے رائج ہے۔ قلی قطب شاہ سے لے کر آج تک کئی شاعروں کے یہاں اس کے نمونے ملتے ہیں۔ یہ دراصل دیہات کے عوام کی پیاری زبان کی ترجمان کرتی ہے۔ گیت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہندی کی نرم و نازک اور سبک رو الفاظ کا ہی استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اس گیت کی ایک جو خاصیت ہے، اس میں زیادہ تر الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ سادہ اور سلیس ہوتے ہیں، جن کے معنی بہت بھاری اور سڈھول نہیں ہوتے، بلکہ سادہ اور سلیس ہوتے ہیں، جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، جس سے گیت میں کافی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنے مضمون میں، اپنے ٹاپک میں یا اپنے سبق میں نرم الفاظ یوز کریں گے، آسان الفاظ یوز کریں گے، تو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اسی طرح جو سننے والے ہوں گے ان کو بھی اچھے لگیں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سبق آسان ہو ہی جائے گی۔ عہد حاضر میں اس صنف کو بخوبی برتنے والے شاعروں میں سلام مچھلی شہری، بیکل استاہی، اجمل سلطان پوری، زبیر رضوی اور وسیم بریلوی کے نام قابل ذکر ہے۔ تو دوستو، یہ تھا گیت کا مختصر سے تعریف، اور گیت جو صنف ہے، اس صنف کے جو بڑے بڑے شعراء کرام ہیں ان کے نام۔ اب آئیے آج کا ہمارا جو گیت ہے، اس گیت کے جو شاعر ہیں، جو مصنف ہے، اس کے بارے ہم لوگ پڑھیں گے، اور اس گیت کے جو مصنف ہیں وہ ہے سلام مچھلی شہری۔ تو ہم لوگ سلام مچھلی شہری کی سوانح حیاتوں کو سمجھتے ہیں۔ تو سلام مچھلی شہری کا جو اصل نام ہے کیا ہے، وہ عبدالسلام۔ کیا نام تھا؟ عبدالسلام۔ مچھلی شہر جونپور یوپی کا ایک قصبہ ہے، اور اسی قصبے میں وہ 1 جولائی 1921 میں پیدا ہوئے۔ تو آپ سے اگر پوچھا جائے سلام مچھلی شہری کہاں پیدا ہوئے، تو مچھلی شہر کہاں پہ ہے؟ جونپور میں۔ اسی سے آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ وہ جونپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے، اور کب ہوئے؟ تو 1 جولائی 1921 میں ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبدالرزاق تھا۔ کیا تھا؟ عبدالرزاق۔ اور دادا کا نام محمد اسماعیل تھا۔ سلام مچھلی شہری سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے، جس کے نتیجے میں تحریک آزادی ہند سے وابستہ ہوئے۔ اسی زمانے میں ان کی شاعری کی بھی ابتدا ہوئی، اور وہ تحریک آزادی کے پس منظر میں انقلاب آفرین نظم لکھنے لگے۔ جب وہ تحریک آزادی سے مستفید ہوئے یا ان سے ملے، ان کی جو لگاؤ ہوئی، تو اور یہ شاعر بھی اسی وقت سے شعر و شاعری کہنا بھی شروع کر دیے تھے، تو لوگوں کو جوش دلانے کے لیے، ان کے اندر انقلابی جذبہ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے انقلاب آفرین، انقلابی نظمیں کہنا شروع کر دی، انقلابی نظمیں لکھنے شروع کر دیے۔
सियासत की वजह से उनकी तालीम भी मुतासिर हुई, यानी जब वो सियासत में उतर गए तो उनकी तालीम मुतासिर हुई, वहीं से उनकी तालीम में उतार चढ़ाव होने लगा। उन्होंने इनकलाबी नज़मों का एक मजमुआ मेरे नगमे शाये किया। इनकलाबी नज़मों का मजमुआ क्या है? मेरे नगमे। क्या नाम है? मेरे नगमे। और शाये किया जिसे बरतानवी हुकूमत ने जब्त कर लिया। इसे कौन हुकूमत ने जब्त किया था? बरतानवी हुकूमत ने जब्त कर लिया था। सलाम मछली शहरी को मंजूम खत लिखने की भी आदत थी, चुनांचे अपने वक्त के अहम लोगों को वह ऐसे खतूत लिखा करते थे। सलाम मछली शहरी फैजाबाद के एक रिसाला नगमा के एडिटर हुए। आपको अगर पूछा जाए कि वो किस रिसाला के एडिटर हुए तो नगमा। और ये नगमा जो रिसाला था ये किस शहर से निकलता था? फैजाबाद से निकलता था। कहाँ से? फैजाबाद से। सलाम मछली शहरी ने उस वक्त शायरी शुरू की जब उनकी उम्र 14 साल थी। कितने साल की थी? उनकी उम्र 14 साल की थी। तब उन्होंने अपने शेर व शायरी का इब्तिदा किया। शेर व शायरी की इब्तिदा कब की? जब वो 14 साल के थे। 1935 ईस्वी के आसपास उनकी पहली नज्म नीरंग ख्याल शाये हुआ। कब हुआ? 1935 के आसपास उनकी पहली नज्म नीरंग ख्याल में शाये हुआ। नीरंग ख्याल नहीं, नीरंग ख्याल एक किताब है, उसमें शाये हुई थी। उनके बाज नज़में अभी भी याद की जाती हैं। ऐसी नज़मों में, यानी जो नज़में याद की जाती हैं ऐसी नज़मों में सड़क बन रही है और पीपल का सांप वगैरह काबिल जिक्र है। इन नज़मों में, यानी जो ये नज़्म है, इन नज़मों में जिंदगी के तजुर्बात सादा हैं लेकिन तर्ज फिक्र में इनफरादियत है। 1944 ईस्वी में सलाम मछली शहरी का दूसरा मजमुआ वसाअतें शाये हुई। कौन मजमुआ शाये हुई? वसाअतें। और ये कब शाये हुआ? तो 1944 ईस्वी में। आपको पूछ जाएगा जी सलाम मछली शायरी का दूसरा मजमुआ कब शाये हुआ? तो 1944 ईस्वी में। और कौन सा मजमुआ था? वसाअतें, जिसमें कुछ नई और कुछ पुरानी नज़में हैं। सलाम मछली शहरी ने गज़लें भी कही हैं, लेकिन उनकी गज़लों में वही इनकलाब की लय है और यह लय कभी कभी गुर्बत व इफलास की दुनिया में उन्हें ले जाती है, और यह दुनिया रोज अव्वल ही से एक नुमाया मौजू बनी हुई है। 1973 ईस्वी में लाहौर में सलाम मछली शहरी का इंतकाल हुआ। कब हुआ? 1973 ईस्वी में। कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। तो दोस्तों ये था सलाम मछली शायरी का मुख्तसर सा सवान हयात और उनकी अदबी खिदमत। अब आइए हमारा जो आज का गीत है, हमारा जो आज का सबक है गीत, इस गीत को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सादे जुबान में कही गई है इस गीत को और आसान लफ्जों में बताया गया है। कहते हैं कि जमुना की लहरें उठती हैं, कुछ कहती हैं कुछ गाती हैं। यानी जमुना नदी है, इस नदी में जो लहरें उठती हैं तो ऐसे लग रहा है कि कुछ कह रही है और कुछ गा रही है, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। यानी इस तरह वो लहरें आती है कि वो कहते कहते फिर वो वापस उस दुनिया में चली जाती है जहां से वो आती थी। क्या जाने क्या कह जाती है आकाश की हंसमुख तारों से। यानी वो आती है और आकाश की हंसमुख तारों से पता नहीं क्या कह जाती है। क्या जाने क्या सुन जाती है इस दुनिया के नज़ारों से। जमुना की लहरें उठती हैं, कुछ कहती हैं कुछ गाती हैं, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती है। शीशे से भी नाजुक लहरों पर कितनी परछाइयां पड़ती हैं। यानी उसकी लहर जो है वो शीशे से भी नाजुक है। लहर तो जैसे शीशा तो थोड़ा मजबूत भी होता है, लेकिन लहर ऐसा होता है कि कभी ऊपर नीचे ऊपर चढ़ा होता है, अगर उस पर कोई पैर रख दे तो वो धंस जाए, लहर पता ना चले। तो कितनी नरम होती है और कितनी नाजुक होती है, और उस पर कितने लोगों की परछाइयां पड़ती हैं। जब ताजमहल कुछ कहता है मुमताज की सूरत हंसती है। यानी मुमताज की सूरत हंसने से उसका जो मुहावरा का मतलब हम ले सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ताजमहल कुछ कहता है कि मोहब्बत हंसता है, यानी किसी की मोहब्बत हंसती है। यानी उस ताजमहल को देखकर एक दूसरे के, यानी आशिक अपने माशूक अपने महबूब का को याद करती है। इन्हीं चीज को बयान करना चाहती है। जमुना की लहरें उठती हैं, कुछ कहती हैं कुछ गाती हैं, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती हैं। मैं इन लहरों पर भेजूंगी जीवन की हजारों ख्वाब अभी, या आंसू या नाजुक कलियां, या चांदनी या महताब अभी। आशाएं फना होकर भी जहां कुछ इमृत रस बहाती है, जमुना की लहरें उठती हैं, कुछ कहती हैं कुछ गाती हैं, और गाते गाते सपनों की दुनिया में खो जाती हैं। तो दोस्तों ये था गीत, और इस गीत का मुख्तसर सा खुलासा। अब आइए हम लोग आज का जो सवाल जवाबात का सिलसिला है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे मारूजी सवालात। इसमें पहला जो सवाल है वो है कि सलाम मछली शायरी के
किस सिन्फ के शायर थे। सलाम मछली शायरी किस सिन्फ के शायर थे। यहाँ पे किस छूट गया है, माफ कीजिएगा। किस सिन्फ के शायर थे। सलाम मछली शायरी किस सिन्फ के शायर थे। तो जवाब में क्या होगा, गीत के शायर थे। इसी तरह है कि जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबे से ज्यादा गुजरती है। जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबे से ज्यादा गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा गुजरती है। तीसरा सवाल है कि ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई। तो ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई, तो शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल की तामीर कराई। आकाश का मुतरादिफ लफ्ज क्या है, यानी आकाश से मिलता जुलता लफ्ज क्या है, तो है आसमान। अब आइए हम लोग मुख्तसर सवाल और जवाबात की तरफ चलते हैं। इसमें पहला सवाल है कि सलाम मछली शहरी की जिंदगी पर 5 जुमले लिखें। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि उसमें हर चीज उनका थोड़ा बहुत आ ही जाए। तो सलाम मछली शहरी का जो असल नाम था वो अब्दुल सलाम था। आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1921 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में हुई। आपके वालिद का नाम अब्दुल रज़ाक था। आपने तहरीक आज़ादी हिंद में भी हिस्सा लिया। सलाम मछली शहरी 14 साल की उम्र से ही शेर व शायरी शुरू कर दी थी। 1935 ईस्वी के आसपास उनकी पहली नज्म निरंग ख्याल में शाये हुई। आपकी वफात 1973 ईस्वी लाहौर में हुई। अब हमारा दूसरा सवाल आता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल क्यों तामीर की। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल अपनी बीवी मुमताज महल की याद में तामीर की। किसके, मुमताज महल की याद में बनाया था, क्योंकि शाहजहां अपनी बीवी मुमताज महल से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इसी की याद में एक मकान तामीर कराई और उसका नाम ताजमहल रखा। इस तरह हम कह सकते हैं कि ताजमहल मोहब्बत की एक निशानी है। हमारा तीसरा सवाल है, गीत लिखने वाले 4 मुस्लिम शायरों के नाम बताएं। तो 4 मुस्लिम शायरों के नाम दर्ज झैल हैं। सलाम मछली शहरी, अजमल सुल्तानपुरी, जुबैर रिजवी। इसी तरह चौथे जो शायर हैं वो वसीम बरेलवी हैं। चौथा सवाल हमारा है कि इस नज्म में शायर ने किसको बंसी बजाते हुए पेश किया है। तो इस नज्म में शायर ने गीता के हसीन खूबियों से बहुत दूर, ख्वाबों से, हसीन ख्वाबों से बहुत दूर उनके आशिक घनश्याम को पेश किया है। किनको, घनश्याम को पेश किया है बंसी बजाते हुए। आशाएं फना होकर क्या बहती हैं। तो आशाएं फना होकर अमृत रस बहाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे एक दूसरे सबक के साथ। और वो हमारा जो सबक होगा, अगला सबक, वो एक नई किताब 10वीं जमात की होगी। क्लास 10 की एक दूसरी किताब होगी, रोशनी होगी। उस सबक को लेकर हम लोग हाजिर होंगे। लेकिन सबक को पढ़ने से पहले हम लोग उसके फेरिस्त को जानेंगे, फिर हम लोग उसके सबक को पढ़ेंगे एक तरफ से। तो तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं हम लोग एक दूसरे सबक के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।